let's start with the fourth question today. It is said that observe the following pattern and find the missing digits. So this how we have to find out. Let's see what the pattern is. It is 11 square. So as you know, it is 1 to 1. Now it's 101 square. So you can see that we add 1 0. So what the answer comes, it's 10201. So you can see here, now we'll compare this both. As the two zeros are there, so you can see that 1002 001. So what the pattern we come to see here, when we add 1 0 between 1 and 1, so you can see that 1 0 should be written between 1 and 2 and 1 0 between 2 and 1. When there are two zeros, so you can see that we write two zeros here between 1 and 2 and two zeros between 1 and 2. Now the same way we'll write these two answers. There are 1, 2, 3 and 4 zeros. So what the answer is, after 1 4 zeros should be there. 1, 2, 3 and 4. We'll write 2. Then again we'll write 4 zeros. 1, 2, 3 and 4. Then we'll write 1. So this is the pattern. Jitne bhi zeros are between 1 and 1. So that should be written between 1 and 2 and between 2 and 1. Bas, this is the pattern. Look at here how many zeros are there. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो हमारा आंसर होगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1. So this is what the pattern of this question. Look at this question. Again it is the same thing. Observe the following pattern and supply the missing digits, numbers. This is we have to write down. Let's see what the pattern is. It's the same 11 square 1 to 1, 101 square 10201. Now the third is different than the previous question. This is the question number 5 which we are doing. It is 10101 the square. तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस ऐड किए थे, यहाँ पे 010. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. It's 1020 then 30201. That means हमारे पास कितने 1 है? We have 3 1. तो 3 तक लिखना है. We have 2 1. तो 2 तक लिखा and we have added 2 zeros. So दोबारा एक बार समझेंगे. 10101 स्क्वायर. तो क्या किया? 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0. 3 तक क्यों लिखना है? बिकॉज यू कैन सी दैट वी हैव 1 2 एंड 3 1. 3 तक पहुंचने के बाद हम उल्टा चले गए. ये जो ऑर्डर था उसका 0201 0201. द सेम वे विल गो फॉर दिस 1 2 3 एंड 4 1. तो हम जाएंगे 1 0 2 0 3 0 और 4 तक. क्यों? बिकॉज 1 2 3 एंड 4 है. अब रिवर्स ऑर्डर यहां से वापस तो 0 3 0 2 एंड 0 1. दिस इज द आंसर. इट्स क्वाइट इजी. नाउ यहां पे हमें एक्सपांशन दिया है तो लिखना है कौन से नंबर का स्क्वायर होगा. तो कैसे पता चलेगा? देखो कहां तक गए. 1 0 2 0 3 0 4 0 5. मतलब 5 1 होने चाहिए. तो 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 और 5. So when we do the square of this, the same pattern, you can obtain this value. Let us see one more question for the pattern. It is 1 square plus 2 square plus 2 square is 3 square. 2 square, 3 square, 6 square, 7 square. 3 square, 4 square, 12 square, 13 square. Now let's see what the patterns we can identify. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव आ रहे हैं और ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव आ रहे हैं. बट हाउ टू ऑब्टेन दिस नंबर, ये यहाँ पे क्वेश्चन होगा. सो नाउ लुक एट दिस. हाउ टू ऑब्टेन दिस नंबर. जो थर्ड नंबर यहाँ पे है वो किस तरह से आ रहा है. ये तो समझ में आ गया कि ये दो कंसेक्यूटिव है, ये दो कंसेक्यूटिव मतलब साथ वाले नंबर्स है. एक के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 तो 5 के बाद 6 6 के बाद 7. यहाँ पे भी 2 3 6 7 12 13
तो 20, 21, 30, 31। तो यहां पे कौन सा नंबर आएगा, विच नंबर एग्जिस्ट हियर, वो किस तरह से ढूंढते हैं वो हम देखें। सो दिस थर्ड नंबर कम एज, हम ये नंबर की बात कर रहे हैं, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, आप देखो दोबारा in the second, 2 into 3 that is equals to 6, 3 and 4, so 3 4s are 12, so that is 12. So the same way this number is the product of this two, so that is 4 5s are, so it is 20. The same way यहां पे 5 है, यहां पे 30 है, तो obviously 5 6 are 30, 5 into dash equals to 30, तो क्या आएगा, obviously 6 आएगा। So here it comes 6. So obviously हमें इसका आंसर बहुत इजी से मिल जाएगा। 6 into 7 क्या होगा, 42. As it is 42, so this is the consecutive number, that is 43 square. So this one is quite easy pattern. Let us do the next one. It is given that without adding find the sum. हमें इसके एडिशन नहीं करना है और हमें सम ढूंढना है। सो लुक एट दिस पैटर्न, तो 1 3 5 7 9, दिस ऑल आर द ऑड नंबर्स। अगेन 1 3 5 7 9 11 13 15 7, और ये सारे ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब एक के बाद दूसरा ऑड नंबर, उसके बाद दूसरा दूसरा दूसरा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, लाइक द सेम। सो व्हेनेवर इट इज इन दिस फॉर्म, as we have written, all numbers we have to add. अगर consecutive odd numbers के addition करने हैं, so we have one pattern, so remember this. तो सबसे पहले कितने odd numbers हैं, 1 2 3 4 and 5, जो भी जितने भी odd numbers हैं वो लिखने हैं, and we have to do the square of that, so this is 25. दोबारा एक बार समझ लो, conditions क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड होने चाहिए और फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होने चाहिए, 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, लाइक दिस। अगर बीच में कोई नंबर मिसिंग है तो ये फॉर्मूला एक्सेप्टेड नहीं है। तो दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट द ऑड नंबर शुड बी देयर एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 1, ऑल आर कंसेक्यूटिव। दूसरा क्वेश्चन देखें, सो अगेन द सेम पैटर्न, 1 + 3 + 5 + 7 9 11। अब कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के एडिशन, तो 10 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 100। सेम वे, तो यहां तक तो 10 था, 11 और 12, सो विल डू द स्क्वायर ऑफ 12, सो दैट इज 144। दिस इज हाउ वी कैन डू द एडिशन ऑफ द ऑड नंबर्स विदाउट एडिंग them. Let us continue the 8th number. It is same as the previous, मगर उसका उल्टा है। It is written that express 49 as the sum of 7 odd numbers. आगे क्या था, sum of all numbers थे, उसका हमें आंसर ढूंढना था। यहाँ पे स्क्वायर दे दिया है, मतलब द सम, तो हमें sum of all numbers लिखना है। तो as we discuss, 7 नंबर्स, ये 7 का स्क्वायर है, तो 1 3 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखेंगे, 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो एज इट इज अ स्क्वायर ऑफ 7, सो दैट इज इक्वल्स टू 49। दूसरा है, वी हैव टू एक्सप्रेस 121 विद द सेम वे, एक्सप्रेस 121, तो 121 किसका स्क्वायर है, करेक्ट, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 11, तो हम 11 नंबर ऑड नंबर्स लिखेंगे कंसेक्यूटिव, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 7, फिर ये 8 9 10 और 11। So these are the 11 numbers we have written, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So the sum, as it is mentioned, we have to express the given as the sum of odd numbers. We obtain it. Let's understand the question here. It is said that how many numbers lies between the square of these two numbers. मतलब 12 square is 144 and 13 square is 169.
सो हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन दिस टू नंबर, ये दोनों नंबर्स के बीच में जो ये दोनों नंबर के स्क्वायर है, दिस आर द कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम यहां पे एक फॉर्मूला पैटर्न जैसा याद रखेंगे, वी शुड ऑलवेज मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर विथ 2, सो दैट इज 24। सो व्हाट द आंसर कम्स, ये दोनों नंबर के बीच में देयर आर 24 नंबर्स लाइज। कंडीशंस क्या है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए और 2 मल्टीप्लाई करना है हमें छोटे नंबर के साथ। एक और क्वेश्चन देखें, इन द सेकेंड नंबर क्वेश्चन इट्स 25 एंड 26। देखो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब 25 का स्क्वायर इट्स 625 और 26 का स्क्वायर इट्स 670। नो, द स्क्वायर ऑफ 26 इज 676. That was correct. So now let us find out that how many numbers lies between these two number. तो हमें क्या करना है, जो छोटा नंबर है that should be multiplied with 2. So we can say that there are 50 number lies between these two number. इन दोनों के बीच में 50 नंबर्स होंगे। एक और सम देखते हैं, इट्स 99 एंड 100। तो अभी हमें 99 और 100 का स्क्वायर नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा द स्मॉलर नंबर शुड बी मल्टीप्लाई विथ 2। सो वी कैन से देयर आर 198 नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100।